I always like to tell young people that मैं हमेशा जवान बहनों और भाइयों को इच्छा रखता हूँ कुछ कहने की। on the day of Pentecost, the leadership of the church was in the hands of 11 people who were under the age of 33. पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो कलीसिया का भार जिम्मेदारी अगुवाई करने का उन 12 के ऊपर आया जो उम्र में 33 के नीचे थे। See, Jesus was like the Jewish rabbis, and they never took disciples who were older than them. और यीशु मसीह जूइश थे, उसने ऐसे चेलों को नहीं जो उम्र में बड़े थे बनाया। They were all younger than him, just like in India, all the gurus and all always have people younger than them. जैसे हिंदुस्तान में बहुत गुरु जवान रहते हैं, उसी तरह उसने भी किया। Their disciples are always younger than them, or younger than the master. हाँ, अपने गुरु से उसके सब चेले जवान थे उसकी उम्र से। So, when Jesus started his ministry at the age of 30, all his disciples were younger than him. जब यीशु मसीह ने 30 साल में अपनी सेवा आरंभ की तब उसके सब चेले उससे उम्र में कम थे, जवान थे। And they had so many wrong ideas. और उन सबको बहुत गलत फहमियाँ थी। But they were totally yielded to Christ. पर वे सब यीशु के लिए तैयार थे। And just imagine, in 3.5 years, they were ready to be apostles, to lead the church. हम विचार करेंगे कि 3.5 साल में वे सब तैयार हो गए शिष्य बनने के लिए, कलीसिया का भार उठाने के लिए। Why is it we don't find such people today? ऐसा क्यों होता है कि आज ऐसे लोग हम नहीं बन पाते या हमें ऐसे लोग नहीं मिलते? Why do people think you've got to wait till you're 50 or 60 before you do something for the Lord? क्यों हम में से लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम 40-50 के हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे? I think that's the work of the devil. मैं सोचता हूँ ये एक शैतान का कार्य है। So I want to encourage all of you young people to believe that when you're young, God can pick you up and do something through you. मैं आप सब जवान भाइयों और बहनों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उठाकर अपने लिए उपयोग कर सकता है। Because I believe in the world in which we live, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, we need a lot of young people who are a witness for Christ. हमें चाहिए कि बहुत जवान हो जो यीशु मसीह के लिए गवाह बने। Everywhere I go, I find young people are just drifting away from God. क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जवान लोग परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे हैं। And they're going off into all types of worldly entertainment. और वे सब संसार के बुरे आनंद में चले जा रहे हैं। And they are turned away from church because they feel church is so boring. और वे कलीसिया से दूर जा रहे हैं क्योंकि वे सोच रहे हैं कलीसिया इतना उबाऊ हो चुका है। And they are right. A lot of churches are pretty boring. और बहुत बार वे सही भी होते हैं क्योंकि बहुत से कलीसियाएं उबाऊ भी हैं। And that is the fault of the older generation. और ये नए पीढ़ी का फाउंडेशन है। So but the young people, instead of just criticizing it, I want to encourage you to say, well, Lord, will you help me to change that? मैं इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जवानों को मुझे बदलने के लिए सहायता करेंगे। So you must pray like that to the Lord. इसलिए आपको इसी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है। You know, when I was converted, I was only 19 years old. मैं जब 19 साल का था तब मैंने मसीह को स्वीकारा। And I had asked the Lord Jesus to come into my heart many times in the previous years. और पुराने वर्षों में मैंने कितने बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे हृदय में आए। But I was not sure whether he had come. पर मुझे ये विश्वास नहीं था, अश्योरेंस नहीं था कि वो मेरे हृदय में आ चुका है। So I want to first speak to all those of you who are not sure whether you're really born again. और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उन सबको खातिर देना चाहता हूँ जिनका नया जन्म हो चुका है। नहीं, you're not sure. जिसको ऐसा खातिर नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका नया जन्म हुआ है या नहीं। So you must be sure, otherwise you won't be able to grow spiritually. तो आपको ये दृढ़ निर्णय और विश्वास होना चाहिए, अन्यथा आप आत्मा में बढ़ नहीं सकते।
I don't know the date when I was born again, मुझे वो दिन याद नहीं जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ, but that's not important. ये महत्व का भी नहीं है। Those who are born in Christian families, very often they don't know the exact date. क्योंकि बहुत लोग जो मसीह परिवार में जन्मते उनको ये पता नहीं रहता वह दिन का। I have 4 sons. I don't think any of them know the exact date when they were born again. मेरे 4 पुत्र हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता किसी एक को भी पता है कि उनका नया जन्म किस दिन हुआ। You know, because when you're in a Christian home, almost from the age of 3 onwards, parents urge you to give your heart to Jesus. क्योंकि जैसे आप मसीह परिवार में जन्म लेते हैं, 3 साल की उम्र से माता पिता आपको अपना हृदय यीशु मसीह को दे दो, ऐसा आपको सिखाते हैं। And we may ask Jesus to come into our heart 500 times. और हम परमेश्वर से 500 बार भी कह चुके रहते हैं हमारे हृदय में There's आइए। nothing wrong in that. ये कुछ गलत भी नहीं है, But one of those times will be real. और उनमें से एक बार वो सच्चाई भी हो सकती है, But we may not be sure. पर आपको उसकी खातरी नहीं रह सकती है। So I was also not sure. मुझे भी खातरी नहीं थी इस बात की। I said, how do I know whether he's come or not? मैंने कहा कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे हृदय में आया है या नहीं, Because, you know, some people used to give fantastic testimonies क्योंकि बहुत से लोग अच्छी अच्छी साक्ष्य देते हैं, that some electric shock hit them or things like that. क्योंकि कोई ऐसे कहते हैं कि जैसा पवित्र आत्मा आया, हमारा नया जन्म हुआ, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक जैसा करंट हमें लगा। Or some people had a very wild, wicked life, and then one day they went for a meeting and they were turned around. और किसका जीवन बहुत ही बुरा और बदतर रहता है और एक दिन वो सभा में जाता है और उसके बाद उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। But I was like most of us. I never lived a wild, wicked life. हम आप सब में से बहुतों को जैसा था, मैंने ऐसा कोई बुरा और And गंदा जीवन नहीं जिया था, I didn't even have a good testimony to say. It was not very spectacular. और मुझे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था, ज़रूरत नहीं था कि कोई अच्छा उम्दा मेरे पास साक्ष्य हो। I remember when I was a very young Christian, मुझे याद है जब मैं बहुत ही जवान मसीह था, I heard a man testify in a meeting who had been a murderer. मुझे पता है कि एक भाई अपनी साक्ष्य देता कि वो एक हत्यारा था। I'll never forget that. मैं कभी उसे भूला नहीं हूँ। He'd been a murderer. He was a gang of murderers. वो एक हत्यारा था और हत्यारों के ग्रोह में रहने वाला व्यक्ति था, He had pulled out people's intestines and done all types of terrible things. और उसने बहुत से लोगों को फाड़ा था, मारा था, ऐसी बहुत सी बुरी बातें उसने की थी। And one day he was on his way to commit a murder, एक दिन वह हत्या करने के रास्ते पर जा रहा था, and he saw some pretty girls, उसने एक अच्छी लड़की को देखा, a number of them going in some direction. So he followed them. बहुत सी लड़कियां थी, उसने उनको देखा और उनके पीछे चल And पड़ा। they went into a church, वे एक कलीसिया में जा रही थी and he sat there and he listened. और वह उनके साथ चला गया, वहाँ बैठा And he knelt down and he got converted, and his life was changed immediately. और उसने वहाँ उपदेश सुनकर, कुछ सुनकर परमेश्वर के सामने घुटने टेके और अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। And I was young and pretty stupid those days. और मैं जवान था, इतना मूर्ख था इन दिनों में, I said, boy, I wish I had a testimony like that. और मैं भी ऐसा सोचता था कि मेरे पास भी काश कुछ You know, ऐसी गवाही होती। I wish I had murdered a few people and then suddenly got converted one day. मैं भी शायद कुछ लोगों का हत्या कर चुका रहता और फिर एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा बदलाव आता। But as I grew up, I said, thank you, Lord, I didn't murder anybody. जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला, परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर धन्यवाद, मैंने ऐसा कुछ नहीं You किया था। know, when we are young and we've grown up in Christian families, we wish we had a spectacular testimony. जब हम जवान रहते हैं और मसीह परिवार में जन्म ले चुके रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई उम्दा गवाही हो। But I think only 1 in a million have that type of testimony that they were murderers and they got converted in one moment. लेकिन ऐसी गवाही लाखों में किसी एक की रहती है। But you know, I have found with my very simple testimony that I never did any gross evil. लेकिन मेरे जीवन में एक छोटी सी हल्की सी साक्ष्य थी कि मैंने कोई ऐसा बड़ा बुराई और पाप नहीं And किया था। I didn't suddenly get converted in one moment. I heard and responded and heard and responded 500 times. And one of those times I got converted. I don't know when. मुझे पता नहीं था कि 500 बार मैंने पुकारा है परमेश्वर को मेरे हृदय में आने के लिए, कौन से बार मैं सच्चा था और मेरी सुन ली गई है। You know what I found? मैंने क्या देखा आप जानते हैं? More people were helped by my testimony than that man's testimony. मैंने यह अद्भुत देखा कि बहुत से लोग मेरे साक्ष्य से प्रभावित हुए बजाय इसके कि उस भाई के। Because most of us live very ordinary lives. हम में से, क्योंकि हमारे में से बहुत लोग एक साधारण जीवन जीते हैं। I never had electric shock in my whole life. I mean, I did get one once when I touched an electric wire, but other than that, I never got any electric shock. मेरे जीवन में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक शॉक पवित्र आत्मा या नया जन्म मिलते समय नहीं हुआ। कदाचित किसी बार इलेक्ट्रिक शॉक से मेरे जीवन में करंट आया, But I never had any spiritual experience like that. लेकिन आत्मिक रीति से ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। I've never seen a light or never seen Jesus.
मैंने कभी physically. ऐसा प्रकाश को या यीशु मसीह को नहीं देखा। I never heard God even once with these years. मैंने एक बार भी यीशु मसीह को अपने इन कानों से नहीं सुना। My life has been a very ordinary, unspectacular life. मेरा जीवन एक साधारण था, कोई भी ऐसा विशेष और खास मेरा जीवन नहीं था। My whole life I have lived by faith, not by sight, because I've never seen or heard anything. मेरा पूरा जीवन मैंने विश्वास से जिया है, देखकर नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। I used to sometimes wish, oh, I wish I could see Jesus physically. मैंने ऐसे बार बहुत बार चाहा कि शायद मैं यीशु मसीह को फिजिकली देह में एक बार देखा Oh, that होता। would really solve all my problems. और ऐसा देखने से, ऐसा होने से मेरे जीवन में मेरे बहुत समस्याएं हल हो जाती। I suppose I would talk about that for the rest of my life if I saw it. तो मैं शायद इसी विषय पर मेरे पूरे जीवन भर कहता रहता, बोलता रहता। And then everybody else would get discouraged who hadn't seen Jesus like me. और इसी तरह सब लोग निराश हो जाते, दुखी हो जाते, जिन्होंने इस तरह से यीशु मसीह को नहीं देखा But the होता। Lord gave me a verse which really encouraged me once. पर परमेश्वर मुझे एक ऐसा वचन दिया और जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी, धैर्य दिया। The first verse I'll tell you was John 6:37, यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 37वां वचन। where one day I just read this. जब मैंने एक बार पहली बार इसे पढ़ा, I was 19 and a half years. मैं 19.5 साल का था। And I read here the last part, John 6:37, him that cometh to me, I will never cast out. तब मैंने वहाँ यह पढ़ा कि जो कोई मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। I said, Lord, I've come to you about 500 times or 1,000 times, I don't know. तब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आपके पास 500 या कदाचित 1000 बार, मुझे पता नहीं है, आया हूँ। The Lord said, according to this verse, I haven't cast you out, believe it. तब परमेश्वर ने अपने वचन से कहा, मैंने तुझे यहाँ बताया है कि तू जब मेरे पास आया, मैं तुझे नहीं निकालूंगा। See, when I say the Lord said, I have to explain that. जब परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है तो मुझे It जरूरी है आपको was समझाना। never with my ears. It is not with these ears that I heard. ये मेरे शरीर के कानों से सुनाई नहीं दिया, I heard the Lord speak to me from this verse in my heart. That's what I mean. मेरे हृदय के कानों में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात की, Because I believe this is God's word. क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। That also, some people ask me, you guys are blindly believing one book. Who said it's God's word? और कई लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसा ही अंधे जैसा आप इस वचन पर, एक किताब पर कैसे विश्वास करते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर का वचन है। I said 50 years ago, if you asked me, I would not be able to give you any proof that it is God's word. मैं उन्हें उत्तर देता हूँ, अगर 50 साल पहले आप मुझसे मिले होते तो मैं कदाचित इसका उत्तर नहीं दे पाता कि ये परमेश्वर का वचन है। Today I can say लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूँ, that I have read this book and claimed its promises for 50 years. मैंने ये किताब पढ़ा है और 50 साल इसके प्रतिज्ञाओं पर मैंने दावा किया है, And God has never once let me down. और परमेश्वर ने कभी भी मुझे एक बार भी नीचा होने नहीं दिया। I'm willing to risk my life to stand on the fact this is the word of God. मैं अपना जीवन भी देने के लिए, इस सच्चाई पर खड़ा रहकर जीवन देने के लिए भी तैयार हूँ कि I यही mean, परमेश्वर का वचन है। like if somebody asks in some time of persecution, जैसे किसी सताव के समय कोई आकर पूछे, if somebody asks me, अगर कोई आपसे पूछता है, are you willing to lose your life for the sake of the Bible as God's word? कोई आकर कहे कि आप अपना जीवन दे सकते हो और यह कहते हुए कि यह परमेश्वर का वचन है, Just say these words. I'm not sure whether the Bible is God's word and we'll spare your life. और ये केवल कह दो कि ये परमेश्वर का वचन है, मैं इतना दावे से नहीं कहता, और अपना जीवन बचा लो। I'd say, no, I won't say that. और मैं उस समय कहूँगा, नहीं, मैं यह नहीं You can कहूँगा। take my life. I believe the Bible is God's word. आप मेरा जीवन भी ले लो, मेरी जान भी ले लो, कि मैं कहूँगा ये परमेश्वर का वचन है। That's how much I'm convinced today. इतना मैं आज इससे कन्विंस हो चुका हूँ, But I was not so convinced in the beginning. और इतना मैं सांत्वना उन दिनों में नहीं पाया था, So शुरुआत it में। doesn't matter if you young people are not convinced about it in the beginning. और इससे आपने उतनी तसल्ली नहीं पाई जवानी में, तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। I say, test it out. मैं कहता हूँ आप इसको परखो, Test and see if it works or not. परखो और देखो कि परमेश्वर का I've वचन है। tested and found it always works. मैंने इसे कई बार परखा है और पाया है। I'm not telling lies. I can honestly say I have never found one promise that doesn't work in this book. मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कितना बार परखा है और उसमें का एक भी वायदा जो परमेश्वर ने किया कभी झूठा नहीं निकला। But if I didn't take it seriously, then it won't work. लेकिन अगर मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता हूँ तो ये See, कार्य नहीं करेगा। I find a lot of Christians, they go about God's word so half-heartedly.
मैं कितने मसीहों को ये कहते सुनता हूँ कि परमेश्वर का वचन पूरे दिल से मत लो, आधे हृदय से लो, And then they don't experience the full blessing. और वे तब इसका अनुभव, ये पूर्ण आशीषित है, ये नहीं ले पाते। But if you go at it wholeheartedly, लेकिन अगर आप पूर्ण मन और हृदय से जाते हैं, then you'll find that it really works. तब आप पाते हैं कि ये सच्चा वचन है। So I believe that word 50 years ago. तब मैंने 50 साल पहले इस वचन पर विश्वास किया। I said, Lord, I have no feeling. तब मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे कोई भावनाएं नहीं है, I just believe today that you have not cast me out. केवल मैं साधारण रीति विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे निकाल नहीं दिया है। And you know, now when I look back over 50 years, I never once doubted that Jesus accepted me. और पीछे 50 साल में मैं देखता हूँ और ये मैं विश्वास करता हूँ, एक भी बार मेरे परमेश्वर यीशु ने मुझे निकाल नहीं दिया। I believed he accepted me. मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसने मुझे स्वीकारा है। And you can be sure if you just trust his word. और आपको भी ये खातरी हो सकती है केवल आप इस वचन पर उसके विश्वास करें तो। And I discovered another thing, that until I was sure, I was always living an up and down life. जब तक मैं इसे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता था, मुझे खातरी नहीं थी, तो मैं गिरा और उठा ऐसा मसीह जीवन जीता था। Sometimes I would be interested in spiritual things, sometimes I would go down. कभी मुझे आत्मिक चीजों में उत्साह और उमंग लगता था, कभी नहीं लगता था। Till one day I said, एक दिन- Lord, I believe your word. एक दिन आकर मैंने ये कहा, परमेश्वर मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, I believe you accepted me. मैं ये विश्वास करता हूँ आपने मुझे स्वीकार किया है। Now, I didn't become perfect that day, उस दिन मैं परिपूर्ण और सिद्ध नहीं हुआ, and I've committed many sins in the last 50 years. और मैंने पिछले 50 सालों में कितने पाप भी किए हैं। Even though I turned from sin, I fell so many times. जबकि मैं पाप से फिर चुका हूँ, फिर भी मैं कितना बार पाप में गिरा हूँ। So that's another mistake young people make. ये दूसरी एक गलती है They जो think, जवान करते if हैं। I'm born again, I'm never going to sin again. मैं जब मेरा नया जन्म हो चुका है तो मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा। Well, that's not my testimony. ये मेरी साक्ष्य नहीं है। I've fallen many times. मैं बहुत बार गिरा हूँ पाप में, But something happened after I was born again. पर कुछ हुआ मेरे नए जन्म के बाद। That when I fell, I'd always feel very bad about it. जब मैं पाप में गिरा तब मुझे बहुत ही I'd feel bad in my heart. मेरे हृदय में मुझे बहुत ही दुखद लगा। Whereas before I could sin and not be bothered about it. इससे पहले जब मैं पाप करता था तब मुझे कोई दुख या चिंता या निराशा नहीं होती थी। So I look at it something like this. तो ऐसा मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया। That, you know, a pig, when it falls into dirty water, जैसा एक सुअर अगर गंदे पानी में गिर जाता है, it's not disturbed. It's quite used to dirt and filth and all that. वो उसमें बहुत आनंद लेता है, उसके लिए कोई दुखद बात नहीं है ये, And it doesn't feel bad that it's all dirty. और वो पूरा गंदा हो जाता है, इसके लिए उसे बुरा नहीं लगता। But if a cat falls into dirty water, पर अगर एक बिल्ली उस गंदे पानी में गिर जाती है oh, it'll immediately jump out. और वो तुरंत उसमें से कूदकर बाहर आती है, And for 1 hour, it'll be just licking itself clean. और वो 1 घंटा अपने आप को साफ करने में लगी रहती है। I see that's a picture of the difference between a believer and an unbeliever. ये मैं एक भेद देखता हूँ एक विश्वासी में और एक अविश्वासी में। Can a cat fall into dirty water? एक बिल्ली गंदे पानी में गिर सकती है, Sure. गिर सकती है। Then what's the difference between that and a pig? फिर एक सुअर के गंदे पानी में गिर जाने से अंतर क्या है? The difference is that when they fall, after they fall, the reaction is different. और ये तभी होता है पता जब वो गिरने के बाद उसका वर्ताव कैसा रहता है। So if you want to find out whether you're a believer or not, तब अगर आपको ये पहचान पानी है कि आप विश्वासी है या नहीं, I won't ask you whether you fall into sin, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप पाप में गिरते हैं या नहीं। because we'll all fall. वी ऑल, हम सब गिरते हैं। I want to ask you, what is your reaction when you fall? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका प्रत्युत्तर जब आप पाप में गिरते हैं तब क्या रहता है। That'll tell me whether you're a pig or a cat. तब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं एक सुअर हूँ या एक बिल्ली हूँ। I found that a comfort to know that it's my reaction to falling that determines whether I'm a child of God or not. मुझे इस बात से सांत्वना मिलती है जब मैं गिर जाता हूँ और उसका बदलाव मेरे अंदर, उसके अंदर का
रिएक्शन उसके बाद जो Because- होता है मुझे बताता है मैं परमेश्वर का हूँ या नहीं। Some people get so discouraged. Oh, I accepted the Lord last week and now I have fallen again. क्योंकि बहुत लोग ऐसे ज्यादा निराशा में चले जाते हैं कि पिछले And- हफ्ते मैंने परमेश्वर से कहा पाप नहीं करूंगा और मुझसे फिर पाप हो गए। And I know some people in my church who wouldn't take baptism for a long time because they were afraid after I take baptism, if I fall into sin, then it'll be so bad. मैं अपने कलीसिया में देखता हूँ कितने लोग बपतिस्मा लेने में बहुत विलंब करते हैं इसके लिए कि अगर कहते हैं हमारे द्वारा पाप हो गया बपतिस्मा के बाद तो हमारा क्या होगा। And usually these are children of Christian parents. और ये विशेषकर जो मसीह परिवार में जन्म लेते हैं उनके बच्चों के द्वारा होता I है। found the children of Hindu parents, they are quick to take baptism. मैं देखता हूँ कि हिंदू परिवार के लोग तुरंत बपतिस्मा बच्चे लोग ले लेते But the हैं, Christian parents' children, they would wait and wait and wait लेकिन मसीह परिवार के बच्चे उनके माँ बाप इंतजार करते हैं बपतिस्मा के लिए, because the parents were very foolish. क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही मूर्खता करते हैं। Because they know that once the child gets baptized, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार अगर बच्चे का बपतिस्मा हो जाता है they can use that baptism like a screw to control them. वो बपतिस्मा को एक स्क्रू की तरह उनको दबाकर उसका नियंत्रण करना To चाहते say, हैं। you got baptized, now look how you're behaving. और वे हर बार उन्हें यह कहते हैं देखो आपने बपतिस्मा लिया अपने बच्चों से और आपका बर्ताव कैसा है। They get the prize for the most stupid parents in the world. और उन्हें संसार में सबसे अधिक मूर्ख माता पिता का पुरस्कार मिलता है। And their children don't get baptized because they don't want to hear that from their parents. बच्चे बपतिस्मा ऐसे नहीं लेते क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से ऐसा सुनना नहीं रहता है। You know, I tell such children, go and ask your parents, after you got baptized, did you sin or not? मैं ऐसे बच्चों से कहता हूँ अपने माता पिता से जाके पूछो क्या आपने बपतिस्मा लिया उसके पश्चात पाप नहीं किया। So don't hesitate to take baptism because you're afraid you may fall. इसके लिए हिचकिचाओ मत बपतिस्मा लेने के लिए कि तुम पाप करोगे या नहीं। See, I've been a believer 50 years, but I still won't say today, I will never fall into sin. मुझे 50 साल हो गए विश्वास में आके, लेकिन मैं आज तक भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं पाप में कभी नहीं गिरूंगा। I can say I don't want to. मैं ये कह सकता हूँ कि मैं करना चाहता नहीं हूँ। I could say that even 50 years ago. 50 साल पहले भी मैं ये कह सकता था मैं पाप करना नहीं And चाहता। that is the proof I'm really born again. ये सच्चा प्रमाण है कि मेरा नया जन्म हो चुका That's है। the proof you're really born again. आपका भी यही प्रमाण है कि आपका नया जन्म हो That चुका you है, don't want to sin. कि आप पाप करना चाहते So, नहीं है। when people come to me for baptism, लोग मेरे पास बपतिस्मा के लिए आते हैं, I ask them one question. मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, Do you want to sin again? आप फिर पाप करना चाहते I हैं? say, now listen, I'm not asking you, will you sin again? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पाप करेंगे, You can't give an answer to that. उसका उत्तर आप नहीं दे सकते। Do you want to sin again? क्या आप पाप करना चाहते हैं? And they'll all say, no, I don't want to sin again. और वे सब कहते हैं नहीं मैं पाप करना नहीं चाहता। See, then I'll ask you another question. फिर मैं उनसे और एक प्रश्न कहता हूँ, Do you want to sin even once again in your life? क्या आप जीवन में क्या एक बार भी पाप करना चाहते हैं? They say, no, I'd like to sin, not even sin once. और वे कहते हैं नहीं, और मैं भी कहता हूँ कि मैं जीवन में एक बार भी पाप नहीं करना चाहता। I say, you're really born again. ये हमारे नया जन्म का एक प्रमाण है। You believe Jesus has died for you. ये आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके हमारे पाप के लिए मरा, I say, come, I'll baptize you. और वे आने वाले यीशु मसीह। No, come, I'll baptize you. I और say. फिर मैं उनसे कहता आइए मैं आपको बपतिस्मा देता हूँ। And then I tell them, now don't get discouraged tomorrow if you fall. और मैं उन्हें फिर यह कहता हूँ कि दुखित मत होना अगर आपसे कल पाप हो जाता है। It's like if you fall outside on the road, get up. जैसे आप रोड पर चलते हुए गिर जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। Now, if you fall on the road, how long do you wait on the road before you get up? अगर आप रोड पे चल रहे हैं और गिर जाते हैं तो कितना देर आप वहीं पड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे उठने का? How long do you lie down there discouraged? Oh, I learned to walk when I was 2 years old, but again I fell down today. आप कितना दुखी होकर कितना समय पड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि 2 साल में था, 2 साल का तब चलना सीखा, लेकिन इतना बड़ा होने पर भी अब मैं गिर गया हूँ। I can fall, trip on the road even today. आज भी मैं इतनी अवस्था में रास्ते पर चलकर गिर सकता हूँ, But I've learned to walk. लेकिन मैं चलना सीख लिया है। I learned to walk when I was maybe 1 or 1.5. मैं जब 1 या 1.5 साल का तभी मैंने चलना सीख लिया है। But that doesn't mean I could say I'll never fall. इसका मतलब उस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी गिरूंगा नहीं। So even when we preach about victory over sin, और जब हम पाप पर जय के विषय में प्रचार करते हैं, it does not mean we never fall. इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी पाप नहीं करेंगे। It means God has given us grace to learn how to walk. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम कैसे चल सकते हैं, जी But- सकते हैं। If we are not full, accidentally we may fall.
लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप गिर सकते हैं। But if we fall, we'll immediately get up. लेकिन अगर आप गिरते हैं हम तुरंत उठ जाते हैं, And it's very rare that we fall. और ये बहुत कम हो जाता You है see, for हम example, गिरते हैं। if I'm falling 25 times a day, then that means I have not learned how to walk yet. और अगर मैं दिन में 25 बार गिरता हूँ तब मैं जान लेता हूँ कि मैंने चलना सीखा नहीं है। And that's the difference between falling once in 25 days. और ये इसमें फर्क है कि 25 दिन में एक बार गिरना। So you see the difference. और आप अंतर देखिए। Now, victory over sin is a further stage. You don't have to wait till you get victory to get baptized. आप इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना कि आप पूर्ण रूप से पाप पर जय पाएंगे फिर आके बपतिस्मा लेंगे। Baptism is like a birth certificate. बपतिस्मा एक जन्म पत्र इसके जैसा है, जन्म Like, पत्र you know, a जैसा। child is born, you get a birth certificate. जब बच्चा पैदा होता है आपको कॉर्पोरेशन से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। What does the birth certificate say? बर्थ सर्टिफिकेट क्या कहता है? This child is very smart, it's very tall, it will never fall again. Nothing like that. बपतिस्मा के सर्टिफिकेट, अपना जन्म के सर्टिफिकेट ये में नहीं लिखा रहता है कि बच्चा कभी गिरेगा नहीं, चलना सीख गया है। No, no, no. It's only saying it is born. सिर्फ वो ये बताता है कि इसका जन्म हो चुका That's है। all. Baptism is only that. It only means that. हाँ, बपतिस्मा का केवल यही अर्थ See, है। when we put a person into the water, we are saying the old person has died. हम जब उसे पानी में बपतिस्मा देते हैं और कहते हैं कि जुना मनुष्य इसका And मर now गया a है new person has come out. और इस पानी से बाहर आकर एक नया मनुष्य बाहर The आया new है। person is not a perfect person. नया मनुष्य एक सिद्ध या परिपूर्ण मनुष्य नहीं है, He's growing to perfection, वो बढ़ रहा है सिद्धता की ओर, but he's got new desires. पर उसके अंदर नई उमंग और इच्छाएं हैं। A desire not to sin. इच्छा इसकी कि वो पाप नहीं करे, And it'll grow little by little by little and gradually learn how not to fall into sin. और वो थोड़ा 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 बढ़ेगा और ये सीख लेगा कि पाप नहीं है करना। So that's very important to get these things clear in our mind at the beginning. ये बातें हमारे हृदय में पक्की होना निश्चित जरूरी है। And right from the beginning, if you know, just like a child is given milk, every day it's crying out for milk. और ये इस तरह से कि शुरुआत में जब बच्चा रोता है हमेशा दूध और दूध और दूध उसे दिया जाता है। If you're really born again, you'll find in your heart a desire to read the Word of God. अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपके हृदय में एक इच्छा आएगी परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। See, it says in 1 Peter chapter 2 एक पत्र इसका दूसरा अध्याय में हम वचन पढ़ेंगे। and verse 2. 1 Peter 2 verse 2. एक पत्र दूसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन। It says, like newborn babes, long for this pure milk of the Word of God. नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। So, here it speaks of a growth into fuller salvation. यहाँ हम पढ़ते हैं उन्नति की उद्धार के विषय में, पूर्ण उद्धार तक पहुँचने के लिए। And that is by longing for the milk of the Word of God. और ये इस तरह से होता है कि परमेश्वर के वचन की भूख, जैसे बच्चे को दूध की भूख लगती है। So, you'll find, if you're really born again, you'll find a desire to read God's Word. आपका अगर नया जन्म हुआ है तो आपके अंदर ये इच्छा होगी कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें। And I would encourage you to do that. और मैं आपको उत्साही करूंगा इस विषय में कि आप यह करो। Now, you see, this one book has got milk and meat and bones and everything. इस एक ही किताब में हमें दूध और मांस और हड्डियां सब मिलती है। So, you can't put meat into the mouth of a child. इसलिए आप मांस को छोटे बच्चे के मुंह में नहीं डाल And सकते। a child does not know how to take the bones out from the fish छोटे बच्चे को मच्छी में से कांटे कैसे निकालने पता नहीं है। or to eat a chicken and remove the bone. चिकन खाना, उसमें से हड्डी को अलग करना। So, when you read the Word of God, you'll find milk and meat all mixed there. और जब आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं पढ़ते हैं तो दोनों आपको साथ ही मिलते हैं, दूध और मांस। What I mean is, there are some things which are very strong, which are for grown-up believers. मांस वो है कि जो बहुत कठिन बातें हैं जो बड़े विश्वासी के लिए है। And milk is the very simple things for new believers. और दूध वह है बहुत आसान सी चीजें आ गया है जो So, नए बच्चों के लिए है। You shouldn't get discouraged if there are some things you can't understand. इसलिए आप निराश मत हो कि कोई चीजें आपको इसमें से समझ में नहीं आती है। See, in your school or college, you have a different set of books in each standard. आपके स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग किताबें रहती है। But imagine if you were in a school where you have the one book all the way from first standard to 10th standard. आप इमेजिन करिए, विचार करें कि स्कूल में आपको 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक अगर एक ही किताब रहती Just है, one science book.
एक ही केवल इतिहास अपना साइंस की बुक, All the syllabus, first standard, second standard, third standard, all is in 10, all in one book. हाँ सब चीजें एक ही किताब में है And they are not even put in separate sections. और वे अलग अलग भाग में भी नहीं रखी गई है, It's all mixed up. सब मिक्स किए गए हैं। Sometimes first standard stuff, next verse maybe 10th standard stuff. पहला वचन बात पहले कक्षा की और फिर दूसरी बात 10वीं कक्षा की। The Bible is something like that. परमेश्वर का वचन कुछ इसी तरह से है, You read and some things you can't understand. कुछ आप पढ़ते हैं और कुछ आप समझ नहीं पाते, And you say, well, maybe I haven't reached that class yet, so I'll just set it aside. और आप कहते हैं कि इस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, इसके लिए आप उसे अलग कर देते हैं। Maybe I'll understand it in 10 years. मैं हो सकता है इसे 10 साल बाद समझ लूं, Then you come to something else, you say, oh, I can understand this. और फिर आप कुछ पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ ये मुझे समझ में आता है, Take that. वो से ले लो आप। Then you may find 10, 15 verses which are in different levels which you can't understand. और फिर आप 10-15 ऐसे वचन पा सकते हो जो आपके समझ से परे हैं, Next year, you'll understand some more. और दूसरे साल आप कुछ ज़्यादा समझ लेंगे। You know, there are things I'm understanding this year which I never understood for 49 years. 49 साल में मैंने वो चीज़ें नहीं सीखी, वो इस साल मैं सीख रहा हूँ। Because in the Christian class is not just 10 standards, there are many standards. क्योंकि मसीह स्कूल में आपको 10वीं कक्षा तक नहीं है, बहुत ही क्लासेस तक है। So don't get discouraged if there are a lot of things here you can't understand. और इसके लिए निराश मत हो, निरुत्साहित मत हो कि बहुत सी चीज़ें इस वचन में हैं। You say that's the meat, I'll drink the milk. और आप ये कह सकते हो कि ये मांस है लेकिन मैं दूध ही पीऊँगा। So that's how it was for me. ये मेरे लिए भी ऐसा ही है, I found something I could understand, I took it. जो मुझे समझ में आता है मैं इसमें से ले लेता And हूँ। you know, sometimes when I used to witness to people, कब मैं लोगों के सामने जब गवाही देता हूँ, they would ask me some question. वे मुझे कुछ प्रश्न पूछते हैं, I didn't know the answer लेकिन मुझे उसका कुछ पता नहीं रहता because उत्तर, I didn't know the Bible so much. क्योंकि मुझे बाइबल पूरी रीति से अच्छी तरह से पता नहीं है। And I would tell them, see, I'm sorry, I don't know the answer to that. I'll try and find out. हाँ, मैं उनसे कहता हूँ सॉरी, क्षमा कीजिए, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता है, मैं इसे ढूंढूंगा फिर बता सकता हूँ। I mean, a little child, what's wrong in a 5-year-old saying, I don't know the answer to that? 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या गलत है, वो कहता है मैं इस उत्तर को नहीं जानता हूँ। I mean, if you ask a little child something about the rotation of the earth around the sun, it doesn't know. एक छोटे बच्चे से अगर हम पूछते हैं धरती का सूर्य के पीछे घूमना, चक्कर लगाना, वो कहता है मुझे पता नहीं। That doesn't mean that child is not a healthy child. इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा तंदुरुस्त नहीं है। He could be a very intelligent child and he may not know anything about the rotation of the earth around the sun. वो अच्छा लड़का बच्चा हो सकता है, लेकिन धरती का सूर्य के चारों ओर घूमना ये उसे हो सकता है पता ना हो। He will understand after 2-3 years. 2-3 साल बाद उसे समझ सकता है। So there's nothing wrong in saying, well, I'm just a young believer, I don't know the answer to all these things. ऐसा कहना कुछ गलत नहीं है कि मैं एक जवान विश्वासी हूँ और इन बातों को मैं नहीं जानता। So the Christian life is like a growth. It's like going in school and you first learn ABC. और मसीह जीवन ऐसा है कि हम बढ़ते हैं स्कूल के जैसा ABCD सीखते हैं, We must have a desire, like you have in school, I must get promoted to the next class. लेकिन आपके अंदर ये इच्छा जरूर होनी चाहिए कि मैं बढ़ूंगा और अगली कक्षा में जाऊंगा। And it's not just by studying the Bible that we grow. ये केवल इतना ही नहीं है कि हम बाइबल पढ़ेंगे और हमारी उन्नति होगी। The Bible is like, studying the Bible is like eating food. बाइबल इस तरह से है कि जैसे हम खाना खाते हैं, That's good. अच्छा है, But you know, every school has got a games and physical training and all that. और हर स्कूल में कुछ खेल रहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग रहता है, Because we also need to do something with our body, some exercise. क्योंकि हमें अपने शरीर से कुछ शिक्षा तालीम भी करनी है। I think that's a bad school that has no physical exercise at all. मैं सोचता हूँ कि वो स्कूल बुरा है जिसके अंदर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। So in our Christian life also, we need something to exercise our spirit. और मसीह जीवन में भी ऐसा ही है कि हमें कुछ एक्सरसाइज करना है हमारे विश्वास के विषय में। So God allows us to face different temptations. तो परमेश्वर हमें बहुत से मोह में से जाने देता है, That is our exercise. वो हमारी एक्सरसाइज है, That is like PT. वो पीटी के जैसा है, That makes me strong. वो हमें मजबूत करती है। That somebody opposes me and questions what I'm saying in the class. कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है क्लास में, और- मेरा विरोध करता है। I find some difficulty with my parents at home. मुझे मेरे परिवार में, मेरे माता पिता में कुछ कठिनाई मालूम पड़ती है। Maybe your parents don't understand you. हो सकता है आपके माता पिता आपको समझ नहीं पाते होंगे, And many children have conflict with their parents. और बहुत से बच्चों के माता पिता के साथ झगड़े होते हैं। Even where the parents are believers. हो सकता ये भी होता है कि माता पिता विश्वासी रहते हैं, Because you must remember that your parents also are not perfect.
क्योंकि आपको ये जानना है कि आपके माता पिता भी सिद्ध या परिपूर्ण नहीं है, They're also growing. वो भी बढ़ रहे हैं। After 15 years, they'll understand you better. आपको 15 साल के बाद हो सकता है आपको अच्छी तरह से समझने लगे। I mean, I know that. My first son was born when I was 29 years old. मैं याद करता हूँ कि जब पहला बेटा मेरा जब मैं 29 साल का था हुआ, And my last son was born when I was about 39 years old. जब मेरा चौथा बच्चा होगा जब मैं 39 साल का था। So I had a lot more wisdom by the time my last son was born compared to when my first son was born. जब मेरा चौथा बच्चा हो गया तब मुझे काफी अनुभव आ गया था इससे कि जब Because- मेरा पहला बच्चा जन्मा था, So we are also growing, parents. क्योंकि हम भी माता पिता बढ़ रहे हैं। So your children must not be so hard on your parents saying they don't understand. तो बच्चे लोग अपने माँ पिता पे इतना कठोर मत हो कि वे हमें समझते नहीं हैं। Just like you're growing, they're also growing. जैसे आप बढ़ रहे हैं वे भी बढ़ रहे हैं। So in those conflicts with your parents, you must say, Lord, you're allowing all this so that I can become a little strong spiritually. तो ऐसे तनाव के समय में आप परमेश्वर से यह कहना है कि परमेश्वर आप मेरे लिए परिस्थिति बना रहे हैं कि मैं इसमें से कुछ सीख सकूं। So I want to encourage all of your children to learn to appreciate your parents. तो मैं आपको बच्चों उत्साहित करना चाहता हूं अपने माता पिता की प्रशंसा करने के लिए। The Bible says in Ephesians chapter 6, परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में कहता है, children obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 1. पहले अध्याय में पहले वचन में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। Honor your father and mother so that it will go well with you, that you may live long on the earth. अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके See- साथ प्रतिज्ञा भी है। This is a command for children. ये बच्चों के लिए आज्ञा है। As long as you live in the home, जब तक आप घर में रह रहे हैं, remember, one day you're going to leave the home. एक दिन आप याद रखिए आपको घर छोड़कर जाना है। Maybe you get married and you'll set up your own home. जब आप शादी कर लेंगे आपको अपना घर बनाना होगा। So when you set up your own home, you should not have any regret about the way you lived with your parents. जब आप अपना घर बना लेंगे तब आपको इस बात का खेद न हो कि जैसा आप अपने माता पिता के साथ रहे, Because you get married and you'll have children, remember. क्योंकि आप शादी कर लेंगे आपके भी बच्चे होंगे। You want those children to behave properly to you, आप चाहते हैं कि वे बच्चे आपके साथ अच्छी तरह बर्ताव करें, and you behave properly to your parents. आप अपने माता पिता से अच्छी तरह बर्ताव करें, Because there's a law in this universe that we reap what we sow. क्योंकि यह कुदरत का कानून है कि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। So honor your parents when you're at home. जब आप घर पे हैं तो अपने माता पिता का आदर करें। Respect them for all the trouble they took to bring you into the world. आपको इस दुनिया में लाकर जो कुछ वो कठिनाई और दुख उठाते हैं उसके प्रति उनका आप आदर करें। If you could only see what a lot of trouble a mother has to bring a child and to bring it up, even in the first few years. जब आप देखते हैं एक माँ को अपने बच्चे को 5-6 साल तक बड़ा करने में कितना कठिनाई होती है, Don't forget that. ये आप भूलिए मत। So be patient with their mistakes अपने गलतियों के लिए धीरजवंत हो जाओ and use them to say, Lord, you can make me strong through all this. और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे इसके द्वारा तू बलवान बना सकता है। And the other problem we can have is when you're in school or college and there are other worldly type of boys and girls around you. और हम अगर स्कूल या कॉलेज पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने संसार के हमारे बीच संसार के भी बच्चे रहते हैं They have got all types of worldly values and no fear of God. और उनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं रहता और संसार की चीजों का उनके जीवन में बहुत महत्व रहता है। They try to pull you to do wrong things with them. वे आपको खींचते हैं अपने साथ बहुत बुरे काम करने के लिए, There again, you have an opportunity to say no. और वहाँ भी आपके पास मौका है उन बातों का इनकार करने का। You know, many times they will challenge you saying, come on, be bold, don't be a coward. हाँ, कुछ समय आपको वे कहेंगे हिम्मतवान बनो, कायर मत बनो। And you say, I am bold, that's why I'm saying no to you. हाँ, उनसे आप ये कहें कि मैं हिम्मत वाला हूँ इसके लिए आपको ना कह सक रहा हूँ। If I were a coward, I'd say, yes, I'll come along with you. अगर मैं कायर होता तो आपसे कह देता ठीक है आप जो कह रहे हो सही है। If you're bold, you'll say no. अगर आप हिम्मत वाले तो आप नहीं कहेंगे। So it's because you're a coward that you say, yes, yes, I'll do that, because you want to be popular with them. हाँ, अगर आप उनके साथ मशहूरी पाना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाँ मैं, आप कायर है तो कहेंगे हाँ मैं आपके साथ ये करने को तैयार हूँ। I believe a lot of young people get into a lot of problems because they want to be popular with their friends. मैं ये जानता हूँ कि कितने जवान लोग अपने दोस्तों के साथ मशहूर होना चाहते हैं, इसके लिए बुराई में पड़ जाते हैं। And nowadays, things are so bad that if you seek popularity with your friends, you can destroy your life.
और इन दिनों इतने दिन बुरे हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ अगर मशहूरी चाहते हैं तो आपका जीवन बहुत नाश हो सकता They है। can lead you into so many bad habits. शैतान आपको बहुत सी बुरी आदतों में ले जा सकता है। And if you're a girl particularly, you can destroy your whole life. और अगर आप लड़की हैं तो विशेषकर आप अपने पूरे जीवन को तबाह कर सकते हैं। You have to be more careful than the boys. लड़कों से आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। You have to be very careful in your relationship between boys and girls. आपको इस विषय में संबंध में लड़कों के साथ संबंध में अपने सावधानी बरतनी है। Because nowadays, because of the cinema and television and all this very free intermingling of boys and girls. लोगों लड़कियों और लड़के का जुड़ा रहना ये टीवी और सिनेमा के द्वारा बहुत निकट हो गया है। I'm not talking about ordinary conversation. मैं इस साधारण बातचीत के विषय में नहीं कह रहा हूँ। Yeah, you can talk to anybody. आप किसी से भी बात कर There's सकते हैं, nothing wrong in boys and girls talking to each other. पर जो बुरा लड़का There's nothing wrong in boys and girls talking. इसमें कोई बुराई नहीं, लड़का लड़की अगर बात करते हैं But तो। you got to be careful when you get into any physical contact with one another. लेकिन आपको सावधान रहना है शारीरिक किसी संबंध में आने से। If you find somebody trying to get close to you physically, अगर आप देखते हैं जानते हैं कि कोई शारीरिक रूप में आपके निकट आना चाहता trying है, to touch your body in some way, आपके शरीर को कहाँ छूना चाहता है, that's a danger signal. वो एक खतरे का चिन्ह है। You got to immediately, even if it makes you unpopular, you got to pull back to make that person know, no, I don't permit that. उस समय आपको पीछे हटना है उस मनुष्य को ये दिखाने के लिए कि मैं इसको अनुमति नहीं देती हूँ। That will protect you. ये आपको संभाल लेगा। You may be unpopular, they may laugh at you, make fun of you. आप ज़्यादा मशहूर नहीं रहेंगे, वे आपको इस विषय में हंसेंगे, But- मजाक उड़ाएंगे, You will protect your life, unlike the others who mess up their life. लेकिन आप अपने जीवन को बचा लेंगे उन तरह नहीं, उनके तरह नहीं जो अपने जीवन को So, नाश कर देते हैं। one of the most important things that young people need to learn to say to their friends is no. और ये जवान लोगों को सीखना है अपने मित्रों को, सांसारिक मित्रों को नहीं कहना। And those of you who are in Christian homes, और जो मसीह परिवारों में है, when you go to church, जो आप कलीसिया में जाते हैं, I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। It's very difficult ये बहुत कठिन है to find a truly spiritual church in most places in the world. इस जगत में सच्ची एक कलीसिया मिलना आपके लिए बहुत कठिन है। You know, many churches, in order to draw young people, they produce a lot of entertainment. बहुत सी कलीसियाएं बहुत जवानों को अपनी ओर खींचने के लिए इंटरटेनमेंट के बहुत There's, प्रोग्राम बनाते you know, a हैं। lot of programs and movies and music and all. It's like the world that's come right into the church. वो कलीसिया में एक दुनियादारी आ चुकी है जो आपको अपनी ओर खींचती है। And that way you can draw a lot of young people. इस तरह से वो अनेक जवान लोगों को खींच But लेते they'll हैं never become spiritual. और वे कभी आत्मिक नहीं बन सकते। I've seen that in so many places. मैंने इसको बहुत से जगहों में देख चुका हूँ। That's one extreme. ये एक One extreme ये of एक रास्ता है, तरीका है। And then the other side, there are people who avoid all that और दूसरे बाजू कुछ लोग हैं जो इन बातों का इनकार करते हैं and who have nothing. और उनके पास कुछ नहीं है That's boring, और आप absolutely. कहते हो वो बहुत उबाऊ है। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता I हूँ। have traveled in many countries and been to many, many different types of churches. मैं अलग अलग कलीसियाओं से अलग अलग देशों में भेंट कर चुका हूँ। Most churches are like one of these. बहुत सी कलीसियाएं इनमें के जैसी हैं। Don't think it's only your church that's boring ये मत सोचो केवल आपकी कलीसिया उबाऊ है, or only your church is so thoroughly worldly. क्या या यह कि आपकी कलीसिया पूरी तरह से संसारिक बन चुकी है। Most churches in the world are in one of these two categories. इन दोनों कैटेगरीज के There जैसे are बहुत सी कलीसियाएं बन गई very, है। very, very few churches may have a real spiritual balance in this area. बहुत ही कम कलीसियाएं हैं जो आत्मिक रीति से, And- विश्वास की रीति से तालमेल में है। And I'll tell you another thing. और एक बात मैं आपको बताऊंगा, There are very, very few preachers who are not boring. बहुत ही कम ऐसे प्रचारक हैं जो उनका उपदेश उबाऊ नहीं है। Most pastors and preachers in the world are boring. बहुत से प्रचारक दुनिया में प्रचार के द्वारा उबाऊ है। If they speak only 15-20 minutes, they bore you only for 15-20 minutes, thankfully. धन्यवाद की रीति पर आपको 15 मिनट उपदेश देंगे और 15 मिनट आपको उबाऊ करेंगे, उबा देंगे। But those who speak for 1 hour, boy, लेकिन कोई 1 घंटा उसमें से बोलेगा तो आप सर पर हाथ रखेंगे। uh,
So don't think that happens only in your church. तो ये मत सोचिए केवल ये आपकी कलीसिया में हो रहा है। When I was a young Christian, मैं जब जवान मसीह था, I used to go to an assembly. मैं एक सभा में जाता था। I mean, they would really study the word. मैं सोचता था They कि would study and preach, but it was all heavy stuff, वो वचन पढ़ते थे लेकिन बहुत ही very heavy, बहुत bhari. भारी, It was not worldly, but it was very heavy. वर्ल्डली संसारिक नहीं थे लेकिन बहुत ही वजनदार और भारी थे। But you know what I did? मैंने क्या किया आप जानते हैं? And I could not find one man of God in that church whom I could look up to and say, there's a Christ-like godly man. मैं उनमें एक भी ऐसा भाई को नहीं पा सका जो कह सके कि यीशु मसीह है। No, like Christ. यीशु जैसा एक भी आदमी को वहाँ मैं नहीं देख पाया। I never found in those years one really dynamic, anointed preacher. Not even one. मैंने उस समय एक भी ऐसा प्रचारक जो परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में बोलता हो नहीं पाया। So I said, Lord, what shall I do? तब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं क्या करूं? I don't find an example I can follow. मैं एक भी ऐसा उदाहरण नहीं पा रहा हूं जिसको मैं पीछे And चलूं। I read in the Bible that I must look unto Jesus. तब मैंने बाइबल में पढ़ा कि मुझे यीशु की तरफ देखना है। In Hebrews 12:2, look unto Jesus and run the race. यीशु की तरफ देखो, इब्रानी का 12वां अध्याय 2वां वचन, यीशु की ओर देखो और दौड़ो। So I got an answer. तब मुझे उत्तर मिल गया। If I don't find a human example that's good, अगर मुझे कोई इंसान के अंदर उदाहरण नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है। then I look at Jesus, who's a तब perfect example. तब मैं यीशु की तरफ देखता हूँ जो परिपूर्ण एक उदाहरण है। And Jesus is living, और यीशु मसीह जीवित है। and He can reveal Himself to me as I read the Bible through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रकट कर सकता है जैसे मैं उसको वचन पढ़ता So हूँ। I said, Lord, I'll make you my example. तब मैंने कहा, परमेश्वर मैं आपको अपना उदाहरण बनाऊंगा। And once in a while, I would meet a really godly man. और कदाचित कहीं एक बार मैं किसी सच्चे That was परमेश्वर के जन से मिलूंगा, Very rare. लेकिन बहुत ही कम। I'll tell you, I've met very few really godly men in my life. और मैं कहता हूँ कि मैं अपने जीवन में बहुत ही कम ऐसा You know, पूर्ण से परमेश्वर के जन से मिला हूँ, Real humble, godly men whose example I could follow. जिसका उदाहरण मैं अपना सकूं, ऐसा नम्र आत्मिक जन या प्रभु का जन मैं कम मिला हूं। Who were not legalistic and full of rules and regulations, और वो परंपराओं से जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा मनुष्य, but who were just gracious and Christ-like. लेकिन जो मसीह के लिए उत्साही है, Very few. बहुत ही कम। So I said, okay, if I see somebody like that, I'll follow him. तो मैंने कहा अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है मैं उसका साथ You know, चलूंगा। like Paul said, follow me as I follow Christ. जैसे पौलुस कहता है मेरा पीछा करो, But मेरे if I साथ चलो don't जैसे find मैं। somebody like that, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता I है, look at Jesus. मैं यीशु की तरफ देखूंगा। So that became my rule in life. तो ये मेरे जीवन का एक नियम बन गया। I always had Jesus as my example. यीशु केवल मेरे जीवन का एक उदाहरण रहा। And whenever I saw a godly man, that was an additional help. अगर मैंने किसी एक परमेश्वर के जन को देख लिया तो ये एक और अधिक अच्छी बात है। Is that a blessed way to go? A blessed, good way to go? अगर ये आशीर्वादित एक क्या कहते हैं आप, आशीर्वादित Yes. राह है चलने के लिए। See John chapter 20. This is a wonderful verse here, John 20. यूहन्ना का 20वां अध्याय हम पढ़ेंगे। And if you're not familiar with this verse, अगर आप इस वचन को नहीं जानते, tell me which is more blessed, मुझे बताइए आशीर्वादित, ज्यादा आशीर्वादित क्या है? to see Jesus physically and believe in him, or not to see Jesus physically and believe in him? यीशु मसीह को देह रूप में देखकर विश्वास करना या न देखकर विश्वास करना, Which do you think is better? कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है? I always used to think, oh Lord, if I could just see you once, मैं हमेशा- even 5 seconds, if I can just see you once, that'll be great. मैं परमेश्वर से हमेशा कहता था, परमेश्वर कदाचित केवल 5 सेकंड के लिए मैं एक बार आपको देख लूं। And the Lord showed me this verse. और तब परमेश्वर ने मुझे यह वचन बताया। You know, Thomas said, when Jesus came once to after his resurrection, Thomas was not there. थोमा जो नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया, And people told him, we have seen the Lord. और जब लोगों ने कहा हमने यीशु मसीह को देखा है, Thomas said, no, I will not believe until I physically touch him. तब थोमा ने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसको छू न लूंगा। That's John 20, verse 25. 25वें वचन में, यूहन्ना 20वां अध्याय 25 So after 8 days, verse 26, 8 दिन के पश्चात उसके चेले then the disciples were gathered. Jesus came again and Thomas was there.
चेले फिर घर में भीतर थे और थोमा उनके साथ था। And then Jesus said, "Here, Thomas, put your finger, verse 27, and see my hands and my feet. Put it into my side." जब द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके मध्य Verse खड़े होकर 27. तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर And में then डाल। Thomas said, "Now I believe. तब थोमा ने कहा, मैं विश्वास You're करता my हूँ, God." तू मेरा परमेश्वर है। Then, listen, this is the verse I wanted to show you. Verse 29. 29वां वचन हम पढ़ेंगे। Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and still believe. यीशु ने उनसे कहा, क्योंकि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया है। I'm more blessed than the Apostle Thomas. Do you believe that? मैं थोमा प्रेरित से ज्यादा आशीर्वादित हूँ। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? Do you know you're more blessed than all the apostles? आप ये विश्वास करते हैं कि आप सब प्रेरितों से ज्यादा आशीर्वादित हैं? Jesus himself said that. They all saw him and believed. उन्होंने सबने यीशु को देखा था और विश्वास किया था। यीशु ने यह स्वयं कहा है। I don't know how it is, but Jesus said, and I believe it, that I am more blessed than Peter, Thomas, Matthew, all of them. यह किस तरह से होता है मैं नहीं जानता, लेकिन यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं पतरस, यूहन्ना, याकूब से ज्यादा आशीर्वादित हूँ। More blessed than Paul. Paul also saw Jesus. पौलुस ने भी यीशु मसीह को देखा था, उससे भी ज्यादा मैं आशीर्वादित हूँ। And if you have not seen Jesus physically, लेकिन अगर आपने यीशु को शारीरिक रूप में नहीं देखा है, you are more blessed in some way. Don't ask me to explain it, but in some way you are more blessed than all those people who saw him. किस न किसी तरह आप ज्यादा आशीर्वादित है, ये आप नहीं जानिए, लेकिन उनसे जिन्होंने यीशु को दैहिक रूप में देखा है। So that's a great encouragement. तो ये अच्छा उत्साह देने वाली बात है। It's if we see and follow, we don't become as strong as when we don't see and still believe. हम अगर देखकर चलते हैं तो हम इतने हिम्मत वाले, ताकत वाले नहीं बनते, मजबूत नहीं बनते, जितना हम नहीं देखकर चलते हैं। There's one more thing I want to say. और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, So many things are happening in the world that we are approaching the second coming of Christ. इतनी चीजें संसार में हो रही है और हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ओर बढ़ रहे हैं। I'm not speaking like a prophet, मैं एक भविष्यद्वक्ता की रीति से नहीं कह रहा हूँ, but I don't think any of you young people will come to my age. I don't think any of you young people will come to the age of 70 like I am. हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आप में से कोई, नहीं, मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आप में से कोई मेरे 70 साल की उम्र तक पहुंच सकता है। नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकते, sorry। because Jesus will come before that. क्योंकि यीशु कदाचित उससे पहले आ जाएगा। Are you happy about that? आप इससे खुश हैं That you won't live up to 70? कि आप 70 साल नहीं जिएंगे, इससे आप खुश हैं? Jesus will come very soon. यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। So use the few years that you've got to live for Him. तो बाकी कुछ साल यीशु के लिए जी लो, क्योंकि वह आ रहा है। It's very little time, बहुत ही छोटे समय में, very little time. बहुत ही थोड़े समय में। You know, the Jewish people had a great hope that one day they will go back to Jerusalem. और यहूदी लोगों को एक आशा थी कि एक दिन वो यरूशलेम में जाएंगे। More than 1900 years ago, in the year 70 AD, they were all sent out, scattered from Jerusalem. यरूशलेम से सब निकाल दिए गए थे पहली सदी में, 70 साल, यीशु मसीह के 70 या 80 साल के बाद। And then in the about 150 years ago, 150 साल पहले some Jews got together and said, we got to go back to Israel. और कुछ यहूदी उठ खड़े होने कहा कि हम इजराइल को जाएंगे। But they never came back till 1948. 1948 तक वे वापस नहीं आए। Only in 1967 they finally came to Jerusalem. 1967 में उन्होंने जाना। But for 100 years before that, पर 100 साल उससे पहले they would keep on saying, वे कहते रहते थे, next year in Jerusalem, नया साल, दूसरे साल यरूशलेम में next जाएंगे, year in Jerusalem. दूसरे साल हम यरूशलेम में जाएंगे। The people who said it died. जिन्होंने ये कहा वे मर गए। And the next generation got up and said, next year in Jerusalem. और नया पीढ़ी उठ खड़ा हुआ, उन्होंने कहा दूसरे साल यरूशलेम में। Finally, they came. और फिर वे आखिरकार वहां पहुंचे। The early Christians were like that. कुछ मसीह ऐसे थे, Early Christians, the first Christians. जो ने मसीह ऐसे थे। Jesus will come back soon. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। But they didn't know that 2000 years will go. 2000 साल पहले, लेकिन वो ये नहीं जानते थे। But now we know so many things are happening in the world that Christ is coming very soon. लेकिन हम देख रहे हैं संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो So, चुका है। you don't have many years to live for Jesus. तो आपके पास बहुत साल नहीं है यीशु मसीह के लिए जीने के लिए। Don't waste it for
useless things in the world. इस सालों को नाश मत कीजिए बहुत सी बुरी और व्यर्थ चीज़ों में। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's bow our heads in prayer. धन्यवाद परमेश्वर। I want you to pray that Jesus will give you an assurance that your sins are forgiven. मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, एक प्रार्थना करें कि आपको परमेश्वर निश्चय दे कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। Lord, I want you to believe today that you have accepted me. परमेश्वर, मैं आज जैसे आपने मुझे स्वीकार किया विश्वास करता हूँ। I asked you many times to come into my heart. मैंने आपको बहुत बार कहा मेरे हृदय में आने के लिए। Today I believe your word आज मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ that those who come to you, you will never cast out. कि जो यीशु मसीह के द्वारा आपके पास आते हैं आप उन्हें कभी नहीं निकालते। I believe today that I am a child of God. आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। Lord, help me to obey you परमेश्वर मेरी सहायता कर तेरी आज्ञा पालन करने के लिए। in baptism first of all, पहली बात बपतिस्मा के लिए and then in other things. और फिर दूसरी बातों में Help me to honor my parents. मुझे मेरे माता पिता का आदर करने के लिए सहायता कर। Help them to see a change in my life from today. मेरे जीवन में आज से बदल होने के लिए मेरी देखने के लिए सहायता कर। And more than pleasing my parents, help me to please you. मेरे माता पिता को खुश करने से अधिक मुझे आपको खुश करने में सहायता कर। And when I don't see good examples around me, मैं ऐसे बहुत उदाहरण अपने अड़ोस पड़ोस में नहीं देखता हूँ। let me look at you, Lord Jesus, मुझे आपकी ओर देखने दीजिए and follow you. और आपका साथ चलने दीजिए। Thank you, Lord, for hearing me. धन्यवाद परमेश्वर मेरी सुनने के लिए। I pray, Father, you'll bless these dear young people परमेश्वर यहाँ आए हुए हर एक जवान को आशीर्वादित करे, and help them to be true disciples. उन्हें सच्चे शिष्य होने के लिए सहायता करे। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन।